Hello everyone. Today's topic is Prayas, Shreyas and Nisreyash in कठोपनिषद। ये टॉपिक हम एक कहानी से शुरू करेंगे। A story is a conversation between Nachiket and Yama. Nachiket was a teenage boy and Yama was Lord of Death, जिसे हम यमराज के नाम से जानते हैं। ये स्टोरी कठोपनिषद में कही गई है। So the source of his story is Kathopanishad. Now, what is the story? Nachiket was the son of the age Vajshravan. He was performing a sacrifice yag named Vishwajit Yag. In this yag, the performer had to give away all his property. नचिकेत वाजश्रवस साधु का बेटा था और वह एक त्याग यज्ञ कर रहे थे जिसमें अपना सारा धन संपत्ति दान कर देना होता है। In ancient time, cows were designated as valuable and special possession. Hence, Vajshrava decided to donate all his cows to Brahmins as he wants a gift from the god. तो पहले के समय में गायों को बहुत बहुमूल्य माना जाता था, इसलिए साधु ने ये निर्णय लिया कि वे अपनी सभी गायें ब्राह्मणों को दे देंगे और ईश्वर से एक तोहफा प्राप्त करेंगे। Nachiket was observing the sacrificial ritual. He was surprised to notice that his father was giving away only old and disabled cows, unable to give milk. This boy saw that his father was not doing right. नचिकेता बहुत ध्यान से यज्ञ को देख रहे थे और उन्होंने देखा कि उनके पिता सिर्फ उन्हीं गायों का दान कर रहे हैं जो दूध नहीं दे सकती हैं, जो वृद्ध हैं या फिर जो अपंग है, और उन्हें लगा कि उनके पिता सही नहीं कर रहे हैं। Nachiket was very intelligent and with pure heart. He said his father that he has heard in this yag one has to give up all that one possesses. So father, to whom are you going to give me? Vajshravan did not give any reply. After some time, Nachiket asked again the same question. He did not get any response. Again for the third time, नचिकेता repeated the same question. तो नचिकेता बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत बुद्धिमान थे और उनका दिल भी बहुत शुद्ध था। उन्होंने अपने फादर की गलती को सुधारते हुए ये कहा कि आपकी संपत्ति में मैं भी आता हूँ, तो आप मुझे किसे देंगे? इस पर साधु जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो चुप रहे। नचिकेता ने दोबारा यह प्रश्न किया, तब भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। फिर नचिकेता ने तीसरी बार यही प्रश्न किया तो उन्हें उत्तर मिला। Vajshravan could not control his temper. Then the angry father answered, I will give you Yama, the god of death. Nachiketa followed the words of his father and went to the kingdom of death. गुस्से में वाजश्रवन ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें यम को दूंगा, यमराज को, जो मृत्यु के ईश्वर हैं। और नचिकेता ने अपने पिता की बात रखी और वे यमराज के राज्य चले गए। Nachiketa could not enter his kingdom due to Yama's absence, so he waited near the gate for the 3 days without eating anything. नचिकेता 3 दिन यम के गेट पर खड़े रहे, द्वार पर, क्योंकि यम नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति के कारण वो अंदर नहीं जा सके। When Yam returned and found Nachiketa at his doorstep, he felt sad for keeping a Brahmin waiting for 3 days. After the hospitality offered to Nachiketa, Yam told Nachiketa, Dear child, I have not done good by keeping you waiting for 3 days, so I request you to ask for 3 boons. यम को पश्चाताप हुआ कि 3 दिन तक वह बच्चा नचिकेत बाहर खड़े रहे और इसके पश्चाताप में उन्होंने नचिकेत से कहा कि आप मुझसे मांगिए 3 वरदान जो आप मांगना चाहते हैं। तो नचिकेत asked for 3 boons to Yam. First, O Lord, let my father not be anxious about me and let his anger against me vanish. When I go back to earth, let him recognize me and receive me back gladly. पहला जो वरदान था वो ये कि भगवान, जब मैं वापस धरती में जाऊं तो मेरे पिता मुझे खुशी से गले लगा ले, उनका जो गुस्सा है वो शांत हो जाए।
सेकेंड बून, टीच मी द प्रॉपर रिचुअल फॉर द फायर सेक्रीफाइस। वो कहते हैं कि आप मुझे अग्नि त्याग के लिए जो परंपराएं हैं वो आप मुझे अच्छे तरीके से सिखाइए। इन दोनों वरदानों के लिए यम ने हामी भर दी और ये दोनों ही वरदान नचिकेत को प्राप्त हुए। थर्ड boon. Is there indeed a life beyond death? Nachiketa persisted and said, O Yama, I wish to know about the mystery of life and death. थर्ड बून, थर्ड में उन्होंने मांगा कि यम आप मुझे, क्योंकि आप यमराज हैं, आप जीवन और मृत्यु के विषय में सब कुछ जानते हैं, सो प्लीज टेल मी अबाउट लाइफ एंड डेथ। व्हाट इज अ मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ? इज देयर एनी लाइफ बिहाइंड द डेथ? कि क्या मरने के बाद भी कोई जीवन होता है? Yam tried to offer Nachiket worldly pleasure so that he may change the nature of his request for the third boon. But Nachiketa insists by stating that all the worldly pleasure are short-lived and don't render long-lasting happiness. Yam कहते हैं कि ये जो विषय है, the subject of life and death, it is very complex and it is difficult to understand. तो मैं तुम्हें वर्ल्डली जो प्लेजर है उसमें से आप मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको बता दूंगा, दे दूंगा, लेकिन ये वरदान मैं नहीं पूरा कर पाऊंगा। लेकिन नचिकेत पीछे पड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ लाइफ और डेथ की मिस्ट्रीज जानना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए। Therefore, he has renounced all desire for worldly pleasure and has come here with the hope of winning the eternal through the instructions of God of death. वो नचिकेत कहते हैं कि मुझे कोई वर्ल्डली प्लेजर नहीं चाहिए, मुझे जो इटर्नल अल्टीमेट रियलिटी है या जो परमानेंट हैप्पीनेस है, जो स्पिरिचुअल गोल है, मुझे वो चाहिए। मुझे कोई वर्ल्डली प्लेजर नहीं चाहिए, वो टेंटेटिव होते हैं, वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। It was too difficult for Yam to change the mind of young Nachiketa. So finally he agreed to tell Nachiketa about the mystery of life and death. तो इस तरह से नचिकेता ने फिर उन्हें लाइफ एंड डेथ के बारे में ज्ञान दिया। इस ज्ञान में ही हम ये जो नॉलेज दी है, इस ज्ञान में ही हम प्रेयस और श्रेयस को आइडेंटिफाई करेंगे बाद में, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। द सेल्फ इज इमॉर्टल, यम बताते हैं नचिकेत को, द सेल्फ इज इमॉर्टल, कि जो आत्मा है, जो स्व है, वो अमर है। इट वॉज नॉट बॉर्न नॉर डज इट डाई, ना वो जन्म लेती है ना ही उसकी मृत्यु होती है। It did not come out of anything, neither did anything came out of it. Even if this body is destroyed, the soul is not destroyed. The self is living in all being. वो कहते हैं कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए, आपका शरीर भी डिस्ट्रॉय हो जाए, but the soul is not destroyed. और ये जो सेल्फ है, ये सभी जीवों में सभी जगह रहता है। The mere reading of the scriptures or intellectual learning cannot realize Atman. कि सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने से आपको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। One must discriminate the Atman from the body. So what is required for the liberation? That is discriminating knowledge between Atman and body, which is the seat of desire. The goal of wise is to know this Atman. और जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका ये ध्येय होता है, उनका एम होता है कि वो सेल्फ को पहचाने। इसलिए आप देखो, मैं योग की भी जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने यही बताया था कि व्हाट इज द अल्टीमेट एम, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ नॉलेज। शंकराचार्य भी आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो भारतीय दार्शनिक है, ज़्यादातर सेल्फ नॉलेज या आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं। दैट इज आत्मज्ञान इज सिनोनिम्स ऑफ द लिबरेशन और मोक्ष। आत्मज्ञान होने पे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। This body is the chariot, intelligence or mind the driver, the senses are the horses,
conscious the reign, and the Atman is the lord of the chariot, the self is superior. वो कहते हैं ये जो बॉडी है आपकी वो क्या है, वो एक रथ है, और आपका जो माइंड है, जो इंटेलिजेंस है, वो ड्राइवर है उस रथ का, रथी है वो। और जो आपकी 10 सेंसेस हैं, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये जो सेंसेस हैं ये हॉर्सेस की तरह हैं, और इन हॉर्सेस पे कंट्रोल कौन करता है, आपकी इनर वॉइस, जिसे अंतःकरण कहते हैं। तो और इन सब से ऊपर है आत्मा, द लॉर्ड ऑफ चैरियट। दो ईश्वर जो मास्टर है वो आत्मा है, दैट इज सुपीरियर टू बॉडी, माइंड एंड सेंसेस। तो आप देखो ऐसे होता है कि 10 हॉर्सेस हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं, उनकी जो लगाम है वो माइंड, वो जो माइंड कंट्रोल करता है, और फिर माइंड के थ्रू वो जो आत्मन है, जो आत्मा है वो सर्वोच्च है, उसके ऊपर वो आती है। सो आत्मा इज सुपीरियर। वंस सुप्रीम सेल्फ इज रियलाइज्ड, जब आपको पता चल जाता है कि the personality, the real personality is master, not slave. The real personality is something different, the physical entity. So this that realization, because of that realization, person becomes liberated and immortal. Person becomes free from the cycle of rebirth. This is a knowledge given by Yam, कि जब आपको ये realize हो जाता है कि आप शरीर नहीं हैं, आप शरीर से बहुत ऊपर हैं, आपका ना जन्म होता है, ना आप मरते हैं, ना आप कहीं से आते हैं, ना आप कहीं जाते हैं। यू आर इटर्नल, यू आर लिबरेट एवरी टाइम, दिस इज योर रियल नेचर। एंड आप ये जो बंधन है बर्थ एंड डेथ का, ये जब आपको रियलाइजेशन हो जाता है सेल्फ का, तो ये बंधन अपने आप खत्म हो जाता है, एंड यू बिकम लिबरेट। दिस इज अ कोर नॉलेज। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट we will talk about two type of conception. So there are two paths available to mankind in this story of Kathopanishad, that is prayers and shreyas. prayers, अब देखिए prayers क्या है। The word prayers is derived from the root pre, which means to please, delight, gratify, to like, love. There are other several meanings, कि basically the point is कि prayers शब्द का जो मतलब है वो pleasure से related है। pleasure, it deals with those actions which gives us pleasure. They are regarded as inferior in nature as they are directed towards worldly outlook. लेकिन क्यों इनको, अगर हम inferior और superior का distinction करेंगे प्रेयस और श्रेयस में, तो प्रेयस आपका inferior कैटेगरी के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि प्रेयस is all about worldly pleasure, physical pleasure. This is a path of worldly enjoyment, is also known as प्रवृत्ति मार्ग। आप लोगों ने सुना होगा, गीता में भी, शास्त्रों में भी शब्द का बहुत बार वर्णन किया जाता है, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग होता है कि आप जहाँ अपने जीवन में जो भी सुख की इच्छा रखते हैं, जो भी सुख भोगते हैं, ये आपका प्रवृत्ति मार्ग है। एंड हम सब ज़्यादातर उस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम we are chasing to physical happiness, which is temporary. In a true sense, prayers is that pleasure which is born from the contact of the senses with the object. आपको ऑब्जेक्ट को पाकर जो हैप्पीनेस होती है, सपोज यू वांट टू ईट पिज्जा, यू गॉट द पिज्जा एंड you happy, you simply happy, but this happiness is temporary. Suppose आप किसी मार्केट में हैं एंड आपको एक ड्रेस पसंद आ गई और आपने वो परचेस कर ली, आपको खुशी मिलेगी, आपका उस ऑब्जेक्ट का सेंसेस का कांटेक्ट हुआ और उससे जो हैप्पीनेस, जो प्लेजर मिला, वो आप क्या कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ का एम बन गया है कि टेम्परेरी हैप्पीनेस हमको लगती है, हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हम इसी में ही खोए रहते हैं।
So prayers motivates people in the various stage of life from childhood to old age, ड्राइविंग दैम टू सेंशुअल प्लेजर। हम बच्चा जब से जन्म लेता है वो तब से अज्ञात रूप से इच्छा से बंध जाता है। क्यों? क्योंकि इच्छा अभी उसको खिलौना चाहिए, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए, टॉफ़ी चाहिए। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी डिमांड्स और बढ़ती जाती हैं। फिर डिमांड्स लाइक एंड डिसलाइक बदलते भी रहते हैं। बट द होल लाइफ इज ऑल अबाउट फिजिकल happiness, physical happiness which is related to physical object. That's why the prayers is a path of worldly enjoyment and it is regarded as inferior in nature. Now Shreyas. Shreyas is different. The word Shreyas derived from the root Shri means that which diffuse lighted, brings happiness and bliss. There brings happiness is permanent happiness, not temporary. श्रेयस मीन्स गुड, मीन्स यहाँ पे गुड अच्छे की बजाय मैं आपको बताऊंगी शुभ, जिसको हम कहते हैं कि जो अच्छा है, विच इज नॉट ओनली गुड इन अ नैरो सेंस. शुभ मीन्स which is virtually good. It has the following meaning: auspicious, fortunate, conducive to welfare or prosperity, most splendid, superior, etc. It deals with virtue, the right action, spirituality. So they are considered to be superior in nature. So you can see the difference between prayers. Prayers considered as inferior and Shreyas considered to be superior in nature. And Shreyas manifest as the noble virtues compassion, love, patience, empathy, sacrifice, and other virtues positivity, happiness, smiling. ये सब आपको श्रेयस जब आता है, जो श्रेयस का जो पाथ है, जो सही एक्शंस का, शुभ की तरफ बढ़ना, गुड की तरफ मूव होना, इट इज़ अ पाथ ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ आत्मन और रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ. ये उसका पाथ है जब हम मूव होने लगते हैं, एंड दैट इज निवृत्ति मार्ग. निवृत्ति मार्ग क्यों? क्योंकि हम फिजिकल वर्ल्ड की तरफ मूव नहीं हो रहे हैं, हम उससे छूटते हुए हम रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. सो प्रेयर्स इज प्रवृत्ति मार्ग एंड श्रेयस इज निवृत्ति मार्ग. एंड द बोथ टर्म इज इम्पॉर्टेंट, प्रवृत्ति मार्ग एंड निवृत्ति मार्ग. द फोकस शिफ्ट टू वेलफेयर ऑफ आत्मन एंड नॉट द बॉडी. यहाँ पे क्या होता है, प्रेयर्स में हमारा पूरा हमारी बॉडी में होता है कि बॉडी को जो अच्छा लगता है, बॉडी की ज़रूरत है, बॉडी किससे खुश होती है, हमारे शरीर को किससे आनंद मिलता है. लेकिन यहाँ पे आत्मा की तरफ ध्यान चला जाता है. श्रेयस में क्या होता है, आत्मा की तरफ ध्यान चला जाता है, हम अंदर की तरफ मूव होते हैं. Shreyas is born of the satisfaction of higher mind and spirit. Shreyas is something good for the growth of Atman, which ultimately leads to Nishreyas. अब क्या होता है, देखिए एक वर्ड है श्रेयस एंड निश्रेयस. श्रेयस एंड निश्रेयस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. श्रेयस इज अ पाथ ऑफ गुडनेस, गुड यानी शुभ. निश्रेयस इज अ पाथ ऑफ परफेक्ट और कंप्लीट, जहां पूर्णता, परफेक्शन मिल रहा है. The word Nishreyas is another important word. It is formed by combining the prefix nish with the word Shreyas. उसके साथ निश जुड़ जाता है. ये जो लिखा है ना, नी प्लस श्रेयस, तो ये ऐसे हो जाता है. और the prefix nish convey the sense of certainty, fullness, completeness, integrity. The word Nishreyas is related the salvation of Atman. कि श्रेयस से आप शुरू कर सकते हैं, और निश्रेयस is the liberation. Nishreyas is a liberation, the salvation of Atman. This leads to the realization that our existence is in Atman. Nishreyas is a state of Anand. Anand means क्या होता है, ultimate bliss or the destruction of sorrow or suffering.
which accompanies the ending of the rebirth cycle. तो श्रेयस क्या है? The path of good, and the nishreyas is the path or the state. The word state is perfect. The state of liberation, of ultimate bliss and the suffering less state. एक ऐसी स्टेट है जहां आप सारे दुखों से छूट जाते हैं, आपको आनंद यानी जो स्थायी आनंद है, स्थायी खुशी है, वो मिल जाती है, और आप जो रिबर्थ और की जो साइकिल चलती है, बर्थ और डेथ, आप उससे फ्री हो जाते हैं। ये आप जब न्याय दर्शन में पढ़ेंगे तो उसमें भी निश्रेयस की बात की गई है, मोक्ष को निश्रेयस के रूप में समझाया गया है। नाउ अगर हम कंपेयर करें या हम और डीप इस टॉपिक को समझें तो श्रेयस एंड प्रेयस स्प्रेड देयर इन्फ्लुएंस इन अपोजिट वे। श्रेयस इज अ पाथ ऑफ विद्या एंड प्रेयस इज अ पाथ ऑफ अविद्या। मीन्स जब आप इग्नोर होते हैं तभी तो आप वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागते हैं, क्योंकि यू डोंट नो अबाउट द सेल्फ, यू डोंट नो अबाउट द रियलिटी। सो आप ये सोचते हैं कि ये जो वर्ड है, ये जो हमें हैप्पीनेस मिल रही है टेम्परेरी, यही सच है, यही रियलिटी है, यही ट्रुथ है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट एक्सपीरियंस। ये ट्रुथ नहीं है, ये तो डिस्ट्रॉयबल है, ये तो बाधित हो जाएगा। सो व्हाट इज अल्टीमेट, व्हाट इज परमानेंट? तो दैट इज द गुड, दैट इज द सेल्फ। तो श्रेयस जब आपको नॉलेज हो जाती है तो आप श्रेयस के पाथ पे आ जाते हैं। सो श्रेयस इज अ पाथ ऑफ नॉलेज एंड प्रेयस इज अ पाथ ऑफ इग्नोरेंस। नचिकेता इज नॉट। अब देखो, अगर हम स्टोरी से रिलेट करें इसको तो हम बैक टू द स्टोरी। Nachiketa is not enticed by the object of worldly sensual pleasure. By refusing to be bound by the worldly desires, Nachiketa has qualified himself for receiving vidya. अब नचिकेता क्या करते हैं? नचिकेता, ये जो यम उनको बोल रहे थे कि आप दुनिया की किसी भी सुख को मांग लीजिए, मैं आपको देती हूँ, वो कहते हैं कि नहीं, वो उसको मना करते हैं और कहते हैं कि मुझे वो चाहिए कि मुझे विद्या दो, मुझे नॉलेज दो। किसके बारे में? द विजडम अबाउट सेल्फ। सो द पाथ ऑफ नॉलेज एंड द पाथ ऑफ इग्नोरेंस आर ओपन टू द मैन। हर एक इंसान के लिए दोनों पाथ ओपन होते हैं, प्रेयस का भी, श्रेयस का भी। ही कैन चूज एनी पाथ, आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज वाइज पर्सन or the person with wisdom always will choose a path of knowledge. Just as swan separates the milk from the mixture of the milk and water and drink milk alone, जैसे कि हंस होता है, हंस क्या करता है? पानी और दूध का जो मिक्सचर होता है उसमें से वो दूध को पी लेता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। In this way, the wise person performs shreyas rather than prayers. इसी तरह जो बुद्धिमान इंसान होता है, जो विद्वान होता है, वो श्रेयस के बजाय प्रेयस के बजाय श्रेयस को चुनता है या उसकी वो रास्ता फॉलो करता है, क्योंकि वो जानता है टेम्परेरी हैप्पीनेस इज नथिंग, ये तो एक समय के बाद सब खत्म हो जाएंगी। हमें उस चीज को पाने की कोशिश करना चाहिए जो हमेशा रहे, दैट इज श्रेयस। Wise men separate the good in life and follows the good alone. They know that the shreyas leads to the attainment of immortality and eternal bliss. This is important कि जो विद्वान है वो जानते हैं कि श्रेयस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? हमें लिबरेशन मिलेगी, हमें आनंद मिलेगा। प्रेयस लीड सेंशुअल एंजॉयमेंट एंड द बॉन्डेज। दूसरी तरफ प्रेयस से हमें क्या मिलेगा? सेंशुअल एंजॉयमेंट, यानी जो खत्म हो जाएंगे, और बंधन बॉन्डेज ऑफ रिसाइकल, रिबर्थ साइकिल, कि बर्थ लिया फिर डेथ, फिर बर्थ, फिर डेथ। देयरफॉर द वाइज पर्सन they prefer the good to the pleasant. It means good means shares and pleasant means prayers.
तो जो वाइज पर्सन होगा वो गुड को सिलेक्ट करेगा, श्रेयस को सिलेक्ट करेगा। नचिकेता इन द स्टोरी नरेटेड इन कठोपनिषद asked Yama for the grant of Shreyas and not prayers। तो नचिकेता भी यही करते हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे, तो उन्होंने प्रेयस को नहीं चुना, उन्होंने श्रेयस को चुना। Thus, he did not choose the path of the ignorant and other temporary worldly pleasure. He understood such a path leads to sorrow and is not a solution to attain permanent happiness. The path is liberation is different and highly praiseworthy। और फिर वो यम से यही कहते हैं कि मुझे ये वर्ल्डली डिज़ायर्स नहीं चाहिए, कोई भी प्लेजर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेल्फ नॉलेज, दैट इज़ अ पाथ फॉर लिबरेशन। This is a story of Nachiketa and Yama and the concept prayers, Shreyas and Nishreyas। I hope आपको clear हुआ होगा। Thank you so much।